Good morning, students. Now let us complete the chapter. Students, yesterday I had explained the chapter when the iron master, when he saw the paddler in the forge, he requested him to accompany his home. Whereas the peddler already had 30 kroners, he had stolen of the crafter, he denied to accompany him. So now let us proceed further. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. So what happened here? He denied. Why did he deny here? Because he already had 30 kroner. और जैसे उसने उसको अपने घर पे चलने के लिए कहा, he thought of the 30 kroners he had already stolen. और उसे लगा कि चलो मैं इसके साथ चला भी जाता हूँ, ये मुझे अपना एक रिश्तेदार समझ के मुझे couple of kroners दे भी देता है. So what happened of the 30 kroner that I had stolen? अगर मैं इसके साथ चला जाता हूँ तो अपने आप को, ये फ्रेज देखो, look the phrase here, throwing himself voluntarily into the lion's den, मतलब अपने आप को शेर की गुफा में डाल देना. मतलब उसे लगा कि अगर ये चोरी किए हुए पैसे मैं इसके साथ चला जाता हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने आप को खतरे में डाल दूँगा. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. So what happened? तो यहाँ पे कहा गया है he only wanted a chance. वो सिर्फ यहाँ पे अपनी रात बिताना चाहता है. He only wanted a shelter for a night. And after that, look at the word sneak. Sneak होता है go silently, चुपके से निकल जाना. See the word inconspicuously means hardly seen. और वो सोचता है कि मैं रात को यहाँ बिता के सुबह चुपके से यहाँ से निकल जाऊँ और ताकि मतलब कोई मुझे देखे ही ना. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लेकिन आयरन मास्टर को तो ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे साथ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इसको अपने ये मिजरेबल कंडीशन में इसके जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं और शायद इस वजह से वो बड़ा ही एम्बेरस्ड फील कर रहा है और वो मेरे साथ नहीं आना चाहता. प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर. सो नाउ द आयरन मास्टर प्रोसीड फर्दर. आयरन मास्टर अब उसको अपने बारे में बताता है. ही सेड Elizabeth is wife of the iron master is dead. और वो आयरन मास्टर बताता है कि एलिजाबेथ she is no more as you may already have heard. क्योंकि वो तो यहाँ पर उसको अपना फ्रेंड समझ के उसको ये सब बता रहा है. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. उसको बताता है एलिजाबेथ जो उसकी वाइफ है उसकी डेथ हो गई और उसके जो बेटे हैं वो अब्रॉड जा चुके हैं और उसके पास उसकी बड़ी बेटी है. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और अब वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है as you know the Christmas is coming and on the eve of Christmas he requested the peddler to accompany him to his home for a good supper. But the stranger said no and again no and the iron master saw that he must give in. So what happened? But लेकिन उसने मतलब he persisted that he would not accompany the peddler, sorry iron master. और उसने iron master से कहा कि वो नहीं जाएगा. The iron master said he must give in. और यहाँ पे iron master ने उसको कुछ नहीं कहा. It looks as though Captain Wanstead preferred to stay with you tonight, Stenstrom. Look at the word students. ये नाम है Stenstrom. This is the name of the blacksmith who is sitting there in the forge. तो उसको कोई attention कोई भाव ही नहीं देता है. ये उस blacksmith का नाम है. He said to the master blacksmith and turned on his heel. तो यहाँ पर iron master इस blacksmith को बोलता है लगता है ये जो peddler है ये जो उसका friend है old acquaintance है वो blacksmith तुम्हारे साथ ही रहना पसंद कर रहा है, मेरे साथ नहीं जाएगा. And then he turned on his heel means and after that he left the place, he moved on. But he laughed to himself as he went away. And the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. अब इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनो बेटा. जब उसने डिनाई कर दिया आयरन मास्टर की नो
मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा। हालांकि उसने बहुत रिक्वेस्ट की, बट लेटर ऑन ये जो आयरन मास्टर है ये थोड़ी सी स्माइल करता है एंड हिमसेल्फ, एंड ही स्माइल टुवर्ड्स द ब्लैक स्मिथ who knew him understood very well that he had not said his last word। और ब्लैक स्मिथ समझ गया था कि आयरन मास्टर had not said his last word, मतलब कि भैया आयरन मास्टर का लास्ट एक्शन नहीं है कि अब आयरन मास्टर कुछ और करने वाला है उसको अपने घर पे ले जाने के लिए। It was not more than half an hour before they heard the sound of the carriage wheels outside the forge। का उसके गए हुए आयरन मास्टर के जाने से आधा घंटा ही नहीं हुआ था। more than half an hour, आधे घंटे से ज़्यादा ही नहीं हुआ था। दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज। कैरेज क्या होता है? जैसे टांगा होता है ना, तो एक कैरेज आता है व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. So what happened? Now the Iron Master, he went, and after when the Iron Master went away, he sent his daughter Adla Wilkinson. तो यहाँ पर न्यू गेस्ट कौन है जो फोर्स में आया स्टूडेंट्स? एडला विल्किंसन आई है। किसको ले जाने के लिए? मतलब उसको पैडलर को अपने घर पे ले जाने के लिए। और अगर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही सेंड हिज डॉटर टू ब्रिंग द पैडलर एट होम, क्या रीज़न था स्टूडेंट्स? बिकॉज शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएशन। पर्सुएशन क्या होता है? किसी को बना लेना, परसुएड कर लेना। दैन ही हिमसेल्फ का वो तो उसको बनाने में, उसको घर लाने में, मतलब ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन उसकी बेटी में वो मतलब वो ह्यूमन क्वालिटी थी परसुएशन की कि उसको परसुएड कर लेगी एंड शी वुड ब्रिंग हिम एट होम। शी एंटर फॉलोड बाय अ वैलेट। वैलेट क्या होता है बेटा? सर्वेंट। और वो आती है, उसके साथ एक सर्वेंट आता है फोर्ज में, कैरिंग ऑन हिज आर्म्स अ बिग फर कोट। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट डिड शी ब्रिंग फॉर द पैडलर। वो पैडलर के लिए क्या लेके आती है? एक फर कोट लेके आती है, क्योंकि यहाँ जब पैडलर वहाँ आयरन मास्टर अपने घर गया होगा तो उसने इसकी कंडीशन के बारे में एडला विल्किंसन को बताया होगा दैट ही वॉज वेयरिंग रैग्स, डस्ट, that he's in a miserable condition। और इस वजह से जो एडला विल्किंसन है उसके लिए फर कोट लाई है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, का वो सुंदर नहीं थी, बट सी मॉडेस्ट है, क्वाइट शाई। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। कहने का मतलब है सारा काम वैसे ही चल रहा था जैसे कि बाकी दिन चलता था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace। मतलब वो सारी एक्टिविटी चल रही है वहाँ पे फोर्ज में। The stranger had stretched himself out on the floor। और यहाँ पर वो जो पेडलर है बड़े आराम से लेटा हुआ है and lay with a piece of pig iron under his head। और उसने अपने, जैसे हम पिल्लो लगाते हैं ना, तो पिल्लो की जगह पे जब वो लेटा हुआ है ना पेडलर बेटा, तो पिल्लो की जगह पे उसने पिग आयरन अपने सर के नीचे रखा हुआ है, मतलब अपने सर को सपोर्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ द पिल्लो। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। और उसने अपने फेस पे हैट रखी हुई है। As soon as a young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat। जब उसने उसको देखा, she went there और उसकी हैट हटाती है। The man was evidently used to sleeping with one's eye open। वो एक आँख खोल के सोया हुआ था। He just jumped up abruptly and seemed to be quite frightened। Now underline this sentence students। Why he jumped up abruptly and why he seemed to be quite frightened? Reason आप सबको पता होना चाहिए कि actually he had already stolen 30 kroners और उसको पता था कि उसने वो थीफ है और उसे लगा कि शायद मतलब जो आयरन मास्टर यहाँ से गया है तो उसको पता चल गया वो कि वो चोर है और उसने मतलब यहाँ उसको पकड़ने के लिए आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर उसका ऐसा रिएक्शन दिखा रखा है। माई नेम इज़ एडला विल्किंसन सेड द यंग गर्ल। अब वो बोलती है कि उसका नाम क्या है? एडला विल्किंसन। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड हिम परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। सो नाउ स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में एडला विल्किंसन का क्या कैरेक्टर शो कर रखा है, मतलब क्या कैरेक्टर यहाँ पे बता रखा है दैट शी केम हियर टू जस्ट ब्रिंग हिम एट होम
पैडलर को लेने के लिए आई है एंड इवन शी हैज़ अ गुड हार्ट। और वो बोल रही कि उसके फादर ने उसको बोला है कि उसको घर पे लाने के लिए, एंड आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was frightened। वो एक्चुअली बड़े ध्यान से उसको ऑब्जर्व करती है, और एक्चुअली ये हमारी हमारी खुद की साइकोलॉजी है टू जज द पर्सन। और यहाँ पे जो आयरन मास्टर है, जब उसने फर्स्ट टाइम इस पैडलर को देखा तो शायद वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, उसने इसको मिस जज किया। बट एडला वो तो गर्ल ही है ना, अराउंड 25-26 ईयर ओल्ड गर्ल होगी, और यहाँ पर जो उसको देखती है, इवन शी एनालाइज्ड, उसने पैडलर को पहचान लिया, और पहचान लिया उसने क्या मतलब व्हाट डू शी नोटिस अबाउट द पैडलर। शी नोटिस द मैन वाज फ्राइटन, कि वो आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इधर ही हैज स्टोलन समथिंग, अंडरलाइन करो बेटा। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है, एट द फर्स्ट टाइम व्हेन एडला लुक्ड एट द स्ट्रेंजर पैडलर या ट्रैम्प या रैट ट्रैप सेलर, व्हाट डिड शी जज अबाउट हिम, उसने क्या जज किया? उसने जज किया या तो स्टोलन, इसने कुछ चुराया है, नहीं तो वो जेल से भाग गया है, मतलब या तो एक कैदी है, नहीं तो इसने चोरी की है, उसने ये जज किया। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came। और उसको बोलती है, कैप्टन आप हमारे घर में चलो और आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, आप जैसे रहना चाहते हो हमारे घर में आप वैसे ही रहना। as you came only please stay with us over Christmas Eve। लेकिन हाँ, इस क्रिसमस ओकेजन पे, इस ईव पे तुम हमारे साथ चलो। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her। मतलब she has a great power persuasion, उसने उसको persuade किया, और यहाँ पर peddler उसको कुछ नहीं बोल पाया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once। So he persuaded to accompany her। He accepted the fur coat which the valet handed him with the deed। वो valet servant ने उसको मतलब fur coat दिया, and threw it over his racks, और अपने racks के ऊपर उसको पहना, and followed the young lady out to the carriage, और वो उसके पीछे पीछे चल दिया। Without granting the astonished blacksmith so much as a glance। अब यहाँ पे कहा गया है कि जब वो फोर्ट्स में आया तो ब्लैकस्मिथ ने उसको कोई अटेंशन, कोई भाव नहीं दिया। वैसे ही जब ये पैडलर एडला विलमेंसन के साथ जाता है, विदाउट ग्रांटिंग मतलब विदाउट एनी परमिशन और ऑफरिंग द एस्टॉनिश ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए, और उसने भी उसको कोई भाव नहीं दिया, उसने उसकी तरफ देखा ही नहीं जब एडला विलमेंसन उसको लेने के लिए आई। तो यहाँ पे क्या गया है, मतलब हम फ्रेज यूज करते हैं टिट फॉर टैट, ही बिहेव्ड एज अ ब्लैकस्मिथ बिहेव टू हिम एंड ही वेंट अवे। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings। सुनो बेटा, evil क्या होता है? Bad happenings। Forebodings मतलब पहले ही पता चल जाना। तो मतलब क्या उसने एक्चुअली क्या उसको फीलिंग आई कि भाई मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। बुरा तो हो जाएगी, उससे पता है कि मैं चोर हूँ, मैंने 30 करोड़ चुराए हैं, और वो जो आयरन मास्टर मुझे अपने एक्वेंटेंस मानता है, वन ऑफ द कॉमरेड्स ऑफ द रेजिमेंट आर्मी का मानता है, लेकिन जब वो सुबह मुझे देखेगा तो शायद अब मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। बट स्टिल देन ही वेंट अवे। Why the devil did I take that fellow's money? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of। अब कहता है why the devil did I take? ओहो, मैंने उसके पैसे क्यों लिए, मैंने उसके पैसे क्यों चुराए? किसके पैसे चुराए थे? क्रॉफ्टर के। ही थॉट, अब वो बोले ना आई एम सिटिंग द ट्रैप। ट्रैप मतलब अब वो उस ट्रैप में बैठा है, उस जाल में बैठा है, और अब उसको ऐसा लग रहा है वो इस जाल से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाएगा। देखो यही अम्यूजिंग थॉट, बिकॉज ही फील अम्यूज्ड व्हेन ही जस्ट थिंक अबाउट दिस इविल थॉट्स अबाउट द पर्सन्स। वो बहुत खुश होता था, लेकिन कहते ना किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचें तो वही टाइम हमारे साथ आता है। तो अब वो खुद ही इस जाल में फंस गया है, और वो ये टैक्ट, ये मेडिटेशन अब वो उस खुद के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट।
He probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस था और जब आयरन मास्टर आता है डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए, वो बड़े ही आराम से बड़े ही प्रॉब्ली थॉट सोचता है विद सेटिस्फेक्शन, उसके बारे में सोचता है कि किस तरीके से किस मोड पे वो इस पर्सन से, इस रेजिमेंटल कॉमरेड से मिला है, और शायद अनएक्सपेक्टेडली मिलना था उसका. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स. तो लिटिल फ्लैश गेट्स ऑन हिज बोन्स बेटा, ये उसकी हेल्थ के बारे में कहा गया है कि वो बहुत ही दुबला पतला था, उसके जो चिक थे वो सनकन थे, धसे हुए थे गाल, हैंगर ग्लीम हो रहा था उसकी आंखों में. तो उसे लगा कि चलो पहले इसको अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए ताकि खाना कि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, कहते ना थोड़ा मजबूत हो जाए, इसकी हड्डियाँ ना दिखें. He said to his daughter, वो अपनी डॉटर से बोलता है, who was busy at the table, and then we must see that he is getting something else to do than to run around the country selling rat traps. और उसके बारे में सोचता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि इसके लिए कुछ ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे ताकि इसको स्टेट टू स्टेट कंट्री या कहा गया घूम फिर के इसको ये रैट ट्रैप सेल ना करना पड़े. इट इज़ क्वेयर का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम. डाउन हिल बैड टाइम, बुरा वक्त. एज बैडली एज दैट, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो यहाँ पर उसकी डॉटर बोलती है, पापा मैंने जब लास्ट नाइट इसकी तरफ देखा, हाँ हो सकता है इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इसको देख के मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि ये कभी कोई पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी हुआ करता था. अनएजुकेटेड लग रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये किसी रेजिमेंट का कोई पर्सन रह चुका है. You must have patience, my little girl. So in this paragraph में both the daughter and the iron master, they are communicating about the peddler. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. और उसको समझा रहा अपनी बेटी को, देखो ये इसको नहा धुला के साफ़ सुथरा इसको हो जाने दो, ठीक है ना, और जब इसको कपड़े पहनाए जाएंगे तुम देखना, यू विल सी समथिंग डिफरेंट. जो जैसा तुम सोच रही हो ना ये वैसा नहीं है. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प. बस क्या कहने का मतलब है कि जैसे उसके फटे पुराने कपड़े चेंज कर दिए जाएंगे, वैसे ही जो एक ट्रैम्प दिखता है वो एक वैगाबॉन्ड दिखता है, अब वो वैसा नहीं दिखेगा. कह रहे ना यहाँ पर उसके ड्रेसिंग सेंस को कहा गया कि अगर वो अच्छे कपड़े पहनेगा तो एक कैप्टन की तरह लगेगा, वो एक पैडलर या एक रैट ट्रैप सेलर की तरह नहीं लगेगा. जैसे ऐसे सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर. बस वैसे बातें कर ही रहे थे तभी स्ट्रेंजर अंदर आता है. ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग है, जो उनके घर पे होता है. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet I have already told you, the valet means the servant, had bathed him, उसको नहलाया, उसके बाल काटे, उसकी शेव की. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. अब अंडरलाइन करो बेटा, उसको कैसे ड्रेसअप किया गया, उसको सूट, एक अच्छा सा सूट दिया गया. और ये सूट किसका था? ये सूट था आयरन मास्टर का, उसको पहनने के लिए दिया गया. Which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. तो उसको पूरा ड्रेसअप कर दिया गया. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. अब इस लाइन में कहा गया उस पैटर को तो नहला धुला के उसकी शेव वगैरह करके उसको पूरा ग्रूम बना दिया है, बट आयरन मास्टर अब खुश नहीं है उसको इस कंडीशन में देख करके. He looked at him with puckered brow. puckered क्या होता है? wrinkled brow. फ्रॉन्ड है वो. जब जैसे ही वो चेंज करके आया, कपड़े उसको पहनाए गए, वो बहुत गुस्से में आ गया. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace,
ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। अब वो रियलाइज़ कर रहा, ओहो, जब रात को आयरन मिल में उसने फर्नेस मतलब जो मतलब उस अंधेरे में जब वो थोड़ी रोशनी आ रही थी फर्नेस से, तो मैंने तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मतलब ही इज़ रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। उस अंधेरे में जिसने उसको नोटिस किया था वो पर्सन नहीं था जिसको वो सोच रहा था। ये तो सच में ही एक पैडलर है। फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक बट दैट नाउ when he stood there in broad daylight, लेकिन अब वो जब पूरे दिन की रोशनी में खड़ा हुआ है, it was impossible to mistake him for an old acquaintance। acquaintance होता है जान पहचान का, रिश्तेदार। लेकिन अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और अब उसको देख के लग रहा था that he is not the one of his comrades of the regiment and now he is not one of his old acquaintance। भाई उसका पुराना acquaintance नहीं है ये। What does this mean? He thundered. He thundered. Thundered क्या होता है यहाँ पे? मतलब जोर से दहाड़ना। The stranger made no attempt to dissimulate. Dissimulate का मतलब होता है to hide one's feelings। उसने तो कुछ नहीं कहा stranger ने तो, और ना वो अपनी feelings छुपाना चाहता था। He saw at once that the splendor had come to an end। अब उसको लग रहा था उसका जो स्प्लेंडर है, उसका जो यहाँ पे आने का, यहाँ जो कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, जो सुख चैन था, अब वो ख़त्म हो गया था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। अब वो यहाँ पर अपनी सफाई देता है पैडलर बोलता है, सर ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने तो आपको कभी कहा ही नहीं कि मैं आपका कोई पुराना रिश्तेदार हूँ या मैं किसी कॉमरेड, किसी रेजिमेंट का कोई पर्सन हूँ। बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कहा मैं तो एक पुअर ट्रेडर हूँ, एकदम पुअर पैडलर हूँ। हु केप्ट ऑन सेलिंग द रैट ट्रैप्स फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट। मैंने तो आपको यही कहा था, मैंने तो कभी शो ही नहीं किया कि मैं आपका एक्वेंटेंस हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने आपसे दया मांगा था कि प्लीज़ आप मुझे यहीं पे रहने दीजिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। और पैडलर बोलता है, ठीक है, मैं अपने रैक्स, फटे पुराने कपड़े मैं अपने रैक्स डाल लेता हूँ एंड देन अगेन आई लीव द प्लेस। मैंने आपके यहाँ कोई चोरी नहीं किया, मैंने कोई आपको हार्म नहीं किया है, मैंने आपको झूठ नहीं बोला है, तो ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। कहा तुमने सच भी तो नहीं कहा। सच क्यों नहीं कहा कि भाई मैं तुम्हारा ओल्ड रेजिमेंटल नहीं हूँ। बस उसने ये कहा था स्टूडेंट्स कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं कोई पुराना रेजिमेंटल कॉन्ग्रेट नहीं हूँ। You must admit that and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. And I should not be surprised, और मैं surprise नहीं हूँगा अगर शेरिफ यहाँ पर आ जाए and would like to have something to say in the matter। अब वो शेरिफ को बुलाने के लिए उसको धमकी दे रहे हैं। The tramp took a step forward and struck the table with his fist। fist क्या होता है? मुट्ठी। अब आयरन मास्टर अब पैडलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने ऐसी अपनी मतलब हाथ को मुट्ठी बनाया और टेबल पे जोर से देख के मारा। मतलब क्या शो करता है ये, उस पर्सनैलिटी का क्या पार्ट शो करता है? दैट नाउ द ट्राम्प गॉट एंग्री, उसको भी गुस्सा आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। अब वो कहता है आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं। हाउ थिंग्स आर, ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। अब यहाँ पे जो उसका थॉट था, उसका मेडिटेशन था, वो क्या सोचता था? दैट द होल वर्ल्ड इज़ अ बिग रैट ट्रैप। और उसको बताता आयरन मास्टर, अब मैं तुमको बताता हूँ कि ये दुनिया क्या है। क्या आप जानते हैं ये पूरा वर्ल्ड कुछ नहीं है लेकिन एक बिग रैट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग। का तुम्हारे पास जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो कुछ नहीं है। अच्छी चीज़ें मतलब लग्जूरियस लाइफ, मैनर हो गया, घर हो गया, अच्छी लाइफ हो गया, बट चीज़, रेंट्स एंड बिट्स ऑफ पोक, कहा ये चीज़ें कुछ नहीं है। उसने इन चीज़ों को किसके साथ कंपेयर किया है? एक चीज़ रिंस है, बिट्स ऑफ एक पॉक है, एंड सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। कहा और तुमने इस बेचारे गरीब, ड्रैग होता खींचना,
कहा तुमने आपने इन चीज़ों की वजह से तुमने इस पुअर फेलो इस पुअर इंसान को इस मुश्किल में डाल दिया, into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, अगर आपने शेरिफ को बुलाते हो, शेरिफ आता है और तुम मुझे लॉकअप में डाल देते हो, then you Mr. Iron Master, तो सुनो Iron Master, must remember that a day may come, और वो दिन ज़रूर आएगा when you yourself may want to get a big piece of pork, जब तुम भी मेरी तरह वो एक समय आएगा कि किसी चीज़ को देख करके and then you will get caught in the trap, उसको पकड़ने की आप कोशिश करोगे, आप जाओगे और मेरी तरह ही तुम भी एक जाल में फंस जाओगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वो जो उसकी थियोरी थी, उसकी जो मेडिटेशन थी, क्या मेडिटेशन था, द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप। और कोई भी पर्सन एक रैट की तरह अगर उस खुशियों को, उस हैप्पीनेस को, जैसे हम अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत ही शॉर्टकट्स लेते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेने और हमने शॉर्टकट अप्लाई किया, हमने बहुत मेहनत नहीं की, ज़्यादा अपने हार्ड वर्क नहीं किया, कई बार हमें बोलते चिटिंग्स लेके चले जाते या किसी से कॉपी कर लेते। तो ये जो होता है चिटिंग करके पास होना, ये भी तो एक बेट है, चारा है। आप कोशिश करते हो, टीचर आपको पकड़ता है और आपका पेपर कैंसिल हो जाता है। तो उसी तरह ये आयरन मास्टर को भी बोल रहा है, remember a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. The Iron Master का रिएक्शन क्या होता है? The Iron Master began to laugh, और इस पर जो Iron Master है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. चलो कोई बात नहीं, हम शेरिफ को इस क्रिसमस ईव पे क्यों परेशान करें, उसको अकेले रहने दो, उसको क्रिसमस एंजॉय करने दो। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन तुम यहाँ से फटाफट चले जाओ, जल्दी से जल्दी। बट जस्ट एज अ मैन वाज ओपनिंग द डोर, अब आदमी जाने को है, अ पेडलर ही वांट्स टू मूव फ्रॉम देयर। द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। अब पापा मुझे लगता है इसको हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो। And with that she went and closed the door. I don't want him to go. कहाँ, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। वो दरवाज़ा बंद कर देती है और उस पैडलर को वहीं पर ही क्रिसमस ईव पे रोकती है। What in the world are you doing? तो यहाँ पर फादर फिर अपनी डॉटर को बोल रहा है, said the father, कि तुम विश्व में ये क्या करने जा रही हो, मतलब तुम ये क्या गलती करने जा रही हो। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. लेकिन अब डॉक्टर के पास कुछ भी आंसर करने के लिए नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को तो पहले पता था कि दैट ये कोई रेजिमेंटल कोई कॉमरेड नहीं है। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rich. Rich होता है unfortunate person। और यहाँ पे कहा गया है उस अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पर एडला का रिएक्शन बता रखा है, दैट शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी कि वो इस पुअर इंसान के लिए, इस पैडलर के लिए जो पूरे दिन यहाँ वहाँ घूमता रहता है, लोग इसके प्रति रिएक्शंस शो करते हैं, तो आज वो चाहती थी इस पैडलर को एक अच्छी ज़िंदगी दे, एक अच्छा समय दे, वो उसको खुशी महसूस हो यहाँ पे रह के। Going to things makes for the poor hungry rich. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. Interceded इसका मतलब होता है when you looks after someone else, किसी का पक्ष लेना। और यहाँ पे देखो बेटा, आयरन मास्टर है, वो उसको घर पे क्यों लेके आया था, उसे लग रहा था उसका पुराना एक्वेंटेंस है, ओल्ड रेजिमेंटल पर्सन है, उसका फ्रेंड है, इसलिए लेके आया था। क्रॉफ्टर ने उसको कंपनी क्यों दिया, क्योंकि वो अकेला था, मतलब सब में अपना सेल्फ मोटिव था। लेकिन एडला विल्मिंसन, इसका अपना कोई सेल्फ मोटिव नहीं था उसको घर लाने का, उसको घर पे रोकने का, उसको अच्छा सपर या अच्छा लंच प्रोवाइड करने का, एक दिन ज़िंदगी में उसको एक अच्छा सुख देने का। तो यहाँ पर एडला का जो उसका कंपेंशन है, उसका लव टुवर्ड्स दिस पैडलर, ये प्योर बाय हार्ट उसके दिल से था, और वो अभी भी नहीं चाहती थी कि यह पैडलर यहाँ से जाए,
कि उसको पता था ये जो पैडलर है दैट इज़ नॉट वन ऑफ द कॉमरेड्स, ही इज़ नॉट द ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ फादर, बट ही इज़ अ पुअर रिच, अ पर्सन ईदर he has stolen something or ran away from the prison. वो जानती थी ये चीज़ें. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. I'm thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. तो यहाँ पर उसकी मिजरेबल कंडीशन के बारे में सोच रही है, उसकी दैनिक कंडीशन के बारे में सोच कि वो इंसान है जो पूरी ज़िंदगी भर यहाँ से वहाँ धक्के खाता है, यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, मतलब रैट ट्रैप सेल करता है, और इस पूरे संसार में नॉट अ सिंगल प्लेस द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम, और कोई भी इसको वेलकम नहीं करता. कैन फील एट होम मतलब अपने जैसा समझना, अपना खुद का रिलेटिव समझना, अपने जैसे किसी का घर पे समझना, तो शायद इसको कहीं ऐसी फीलिंग मिलती नहीं है. Whenever he turns, he is chased away. इसने कहीं भी शरण लेने की कोशिश की, कहीं भी जाने की कोशिश की, तो लोगों ने इसको थक्के मार के बाहर निकाल दिया. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. हमेशा ये डरा रहता है, क्योंकि जब एडला इसके पास ही थे तुम डर के खड़ा हो गया, याद है ना? मतलब why? He was कहा गया ना abruptly, and he was very astonished, मतलब surprised when he just looked at her. तो कहा ये डरा रहता है, इसको ये डर रहता है कोई इसको अरेस्ट ना कर ले या कोई इसको क्रॉस एग्जामिन ना करे. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर. मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आज ये हमारे साथ रुके और ये आज हमारे साथ इस क्रिसमस ईव पे बहुत खुश रहे. जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में एक दिन वो चाहती है कि ये इंसान बहुत खुश रहे हमारे साथ. अब सुनो बेटा, कितने लोग ऐसे लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं? वेरी रेयर, हार्डली एनीवन. द आयरन मास्टर मम्बल्ड होता है बड़बड़ाना, मरमरिंग करना, समथिंग इन हिज बियर्ड. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. और यहाँ पर फादर ने अपनी बेटी की जो व्यूज है उसको अपोज नहीं किया. इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड. उसने कहा हाँ हम लोगों से गलती हुई है पापा. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. मैं नहीं चाहती जिस इंसान को हमने प्रॉमिस किया हम खुद इसको यहाँ पे लेके आए, और हम नहीं चाहते कि हम इसको मतलब यहाँ से to whom we have promised क्रिसमस ईव पे आए, चीयर इंजॉय करें, और हम इसको घर से बाहर निकाल दें. मैं नहीं चाहती पापा. वो अपने फादर को बोलती है. You do preach worse than a parson. पार्सन क्या होता है? जो चर्च में पर्सन जो प्रीच करता है लोगों को, वो कहा गया है. अब ये वर्ड्स आयरन मास्टर अपनी बेटी के लिए बोले. सर द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस. मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े, मतलब ये चोर है, ये आदमी है घर में, या कि मतलब कहीं कुछ नुकसान ना कर दे. आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस. The young girl took the stranger by the hand and led him out to the table. उसका हाथ पकड़ती है और उसको टेबल पे बैठाती है, खाना खिलाती है. Now sit down and eat. उसको बोलती है बैठो और खाना खाओ. She said, for she could see that her father had given him मतलब forgive करना, मतलब granted permission. The man with the rat trap said not a word. उसने कुछ एक शब्द भी नहीं कहा. जैसे उसने मतलब उसको बड़े ध्यान से देखता रहा, जैसे कि कोई किसी एक फेरी को देखता है. He only sat down and helped himself to the food. और उसने अपने आप को खाना खाने की कोशिश की. Time after time he looked at the young girl. वो बार बार उस बच्ची की तरफ देखता है. Who had interceded मतलब किसी का, ones who looks after someone for him. पक्ष लेना किसी का, किसी को शय देना. Why had she done it? What could the crazy idea be? इसने ऐसा क्यों किया? इसने मुझे डिफेंड क्यों किया? After that, Christmas Eve at Ramssos passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. देखो बेटा, यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन ये आए, जब अल्लाह ने उसको रोका और वो आयरन मास्टर के घर पे रुकता है, What did he do? उसने क्या क्या किया?
उसने कुछ नहीं किया, किसी को हार्म नहीं किया, किसी को ट्रबल नहीं किया। ही डिड नथिंग बट स्लीप, वो बड़े आराम से सोए। ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी में या पूरे साल में ये दिन ऐसा था जो वो बड़ी आराम से सोफे पे सोए। The whole afternoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. बस एक ही one stretch मतलब जैसे अगर सीधे सो गया तो सीधे ही लेटा रहा है, मतलब उसने मोमेंट भी नहीं किया है। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas. अब उसको दोपहर में उठाया गया, उसको क्रिसमस फेयर दिया गया, बट आफ्टर दैट ही फिर सो गया वो। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramjasu. कहीं नहीं सोया इतनी चैन भरी नहीं जितना कि आज वो रामजस्सू के यहाँ पे सो रहा है। In the evening when the Christmas tree was lighted, अब देखो शाम हो गई और आप वो कहते हैं जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो ट्री जो होता है वो लिट करते हैं। The tree was lighted. They woke him up again. फिर से उसको उठाया गया। He stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. सो के उठा एकदम। जब हम सो के उठते हैं तो हमारी आई जो है वो लाइट को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो वैसे उसकी आइज़ ब्लिंक कर रही हैं। But after that he disappeared again. Disappeared again मतलब सो गया। 2 hours later he was aroused once more. Aroused होता है उठाया गया। He then had to go down into the dining room, नीचे गया, and eat the Christmas fish and porridge. ये उनकी जो डिश है वो बनती है क्रिसमस ईव पे। क्या बना था? फिश और पॉरेज। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. खड़े होते हैं खाना खाने के बाद, went around to each one present, एक दूसरे के पास जाते हैं, उनको प्रेजेंट गिफ्ट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. और वो बोल रही है कि इस ईव पे जो तुमको सूट दिया गया है और जो तुमने सूट पहना है वो मेरे पापा चाहते हैं कि ये सूट तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट है। He did not have to return it, और उसको ये सूट रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, और अगर अगले साल तुम यहाँ पर आना चाहते हो, यहाँ पर बड़ी शांति से रहना चाहते हो, if you want to come here, if you want to sleep here, be sure that no evil would befall him. उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। He would be welcomed back again, और फिर से उसका स्वागत किया जाएगा। The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. Amazement होता है surprised. Means वो समझ ही नहीं पाया कि मतलब ये जो गर्ल है उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, और ऐसा बिहेवियर, ऐसा अच्छा बिहेवियर उसके साथ आज तक किसी ने किया ही नहीं था। तो मतलब the peddler he had no word to express her favor towards him, and he didn't understand what's the idea behind it. The next morning, the iron master and his daughter got up in a good season to go to the early Christmas service. सुबह उठी, it was in a good season, और सुबह उठ के वो एक्चुअली उनका कस्टम होता है, वो लोग कहाँ जाते हैं? चर्च। And the guest was still asleep, अभी वो सो रहा था, and they did not disturb him. उन्होंने उनको नहीं उठाया, वो लोग चर्च चले गए। When at about 10 o'clock they drove back from the church, 10 बजे वो वापस आते हैं। The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. और अब ये खबर सब लोगों को फैल गई, सब लोगों को पता चल गया कि भाई एक जो मतलब जो ओल्ड क्राफ्टर था आयरन वर्क्स का, उसकी चोरी कर ली गई है, उसके 30 क्रोनर चुराए गए हैं। और किसने चुराए हैं? रैट रैप ने, मतलब उस वैगाबॉन्ड ने। तो ये न्यूज़ सबको फैल गई, सबको पता चल गया। और जब ये डॉटर और आयरन मास्टर सब चर्च जाते हैं तो इन लोगों को पता चल जाता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है।
Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. उसके फादर ने कहा, ये वही पर्सन है जिसको तुमने घर पे रोका, मेरे कहने के बाद भी तुमने घर पे रोका. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. वो यही सोच रहा है कि जितने भी उनके सिल्वर स्पून्स हैं, सिल्वर का जो सामान है कपबोर्ड्स में, अब तक तो गायब हो गया होगा, मतलब वो चुरा ले गया होगा. The wagon had hardly stopped at the front steps. And the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. अब वो बड़ी हड़बड़ाहट में उतरता है और उसको वो कहता है, वैलेट सर्वेंट से पूछता है, क्या वो आदमी अभी भी है, स्ट्रेंजर स्टिल हियर एट होम? He added that he had heard at church that the man was a thief. और उसको बताता है सर्वेंट को कि हमने सुना है चर्च में कि वो आदमी चोर है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. कहा, सर वो कुछ लेके नहीं गया है, इनफैक्ट वो कुछ छोड़ के गया है और वो एक प्रेजेंट एडला विल्मनसन के लिए छोड़ के गया है और वो चाहता है कि ये जो उसका गिफ्ट है वो एडला एक्सेप्ट करे. The young girl opened the package which was so badly done. So badly done मतलब वो जो उसने गिफ्ट को पैक किया था, it was not मतलब packed in a good way, packed in a well, एक अच्छे systematic way से पैक नहीं था. That the contents came into view at once और एक बार में वो फट गया. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap and then in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large Jack characters. यही नहीं, जब उस बच्चे ने उस गिफ्ट को खोला, she gave a little cry of joy. और what was the gift? क्वेश्चन अगर ये आता है, what did the peddler left for Adela Williamson? एक small rat trap था और उस rat trap के अंदर 3 wrinkled मुसे हुए 10-kroner notes थे और ये वो notes थे जो कि इस पैडलर ने क्रॉफ्टर के जो चुराए थे वो पैसे रखे हुए थे. एंड बट दैट वाज नॉट ऑल. इन द रैट ट्रैप यही नहीं, एक लेटर भी था, जैक कैट, जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था. और देखो उसने एडला विल्मनसन के लिए क्या लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस. इसको एड्रेस कर रहा है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, Since you have been so nice to me all day long as if I was a captain. कहा तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, तुमने मुझसे मेरे साथ एक कैप्टन की तरह बिहेव किया है. Though they all know that he is not a captain, but still उसके मन में कोई फीलिंग नहीं थी एडला के बारे में. एडला ने उसको एज ए कैप्टन की तरह ही रिगार्ड दिया, कैप्टन की तरह ही उसने ट्रीट किया और कैप्टन की तरह ही उसने उसको बिहेव किया. I want to be nice to you in return as if I were a real captain. और वो भी एक रियल कैप्टन की तरह उससे बिहेव करना चाहता है. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas reason by a thief. और वो I do not want, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से तुमको एम्बेरसमेंट फील हो कि भाई तुमने अपने पापा की वजह से, मतलब आपके फादर ने आपको मना किया लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे रोका, तो मैं तुम्हारे मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं तुम्हारी प्रेस्टीज पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं करना चाहता था. इसलिए माय डियर, मैं भी तुम्हारे साथ एक कैप्टन की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन हिज रोड साइड. और वो कह रहा है ये जो पैसे 30 kroner है, लेटर में उसने लिखा है, ये 30 kroner तुम क्रॉफ्टर को दे देना जो कि रोड साइड पे रहता है. Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers? Underline करो, bait चारा for the poor wanderers. और कहाँ है वो एक wanderers के लिए, मेरे जैसे wanderers के लिए, मेरे जैसे एक poor fellow के लिए वो एक बेट की तरह उसने लटका के वहाँ पे क्यों रखे, वो कहीं और भी रख सकता है. तो एक तरह से ये लोगों को ललचाना, लोगों को जाल में फंसाने वाला काम है. Bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat. देखो यहाँ पर मेटाफर यूज किया गया है. यहाँ पर वो बोल रहा है ये जो rat trap है एक क्रिसमस प्रेजेंट है
फ्रॉम ए रैट मतलब ये चूहेदानी एक चूहे की तरफ से है, और ये चूहा किसको कहा गया है? पेडलर ने खुद अपने आप को कहा है। Who would have been caught in this world's rat trap? जो कि वो एक ऐसा चूहा who had been caught, जो इस वर्ल्ड की तरह, उस वर्ल्ड ने उसको बेट शो किया, इस संसार ने उसको एक चारा दिखाया, और वो एक चूहे की बाती उस चारे को जैसे लपकने किया, और इस संसार ने उसको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। If he had not been raised to captain, if he had not been raised to a captain, अगर उसके कैप्टन की तरह बिहेव नहीं किया गया जाता, because in that way he got power to clear himself. अब सुनो बेटा, यहाँ पर बता रखा है जो एडला ने उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया। एडला ने एक जो उसकी पर्सनालिटी थी, गुडनेस, जो कि ये गुडनेस हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन ऐसे लोगों को, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े मतलब सिंपैथी तरीके से, या बड़े मतलब लव अफेक्शन शो नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर लोग होते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह की जो गुडनेस है, उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस पर्सन, वो एक्सप्लेन कर रखा है इसके अंदर। एंड द वर्ड्स, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वार्न्सडेल। अब सुनो बेटा, ये जो कैप्टन वार्न्सडेल है, जो नील्स ओलफ, जो उसका फ्रेंड था, किसका? जो आयरन मास्टर का फ्रेंड था, उसका ही नाम लिखा गया है। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? द पेडलर, दो ही वॉज नॉट ए कैप्टन, बट द बिहेवियर ऑफ एडला विल्किंसन रेज्ड हिम टू दैट कैरेक्टर ऑफ ए कैप्टन। And here, after receiving the warm welcome from Edla, in fact, he had to behave like a captain only. From a paddler, he raised his standard, he raised his views, and in fact, though he was not a captain, but her goodness, her good work deeds made him to raise him into a captain. So he left 30 kroners for the crafter. Means यहाँ पे there is a totally transform in the personality of a paddler. एडला विल्किंसन के नेचर ने उसको टोटली चेंज कर दिया। एक चोर से उसको एक मतलब उसको उसकी मिस्टेक रियलाइज़ की, उसको एक अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा लेसन टीच किया। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी काबिलियत से, हम अपनी अच्छाई से लोगों की जो अंदर जो बुराइयाँ होती हैं, जो नेगेटिविटीज़म होती हैं, हम उनको बड़े प्यार से रियलाइज़ करा के उनकी लाइफ से हमेशा के लिए डिसअपियर कर सकते हैं, कि मतलब उनके अंदर भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और वो तब होगा जब हम उनको एक अच्छे नज़रिए से देखेंगे, एक अच्छे व्यू पॉइंट से देखेंगे। सो इन दिस वर्ल्ड आई थिंक वी ऑल हैव अ नीड टू डू दिस। सो एट लास्ट मैं यही बोलूँगी, लव एंड अफेक्शन कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन कम्प्लीटली। चाहे कोई ये पैडलर हो, चाहे कोई थीफ हो, चाहे कोई चोरी करने मतलब झूठ बोलने वाला पर्सन हो। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आवर चैप्टर हैज़ बीन completed, and now students, I just don't want to just give you a burden. See here, there are few questions. Think as you read. 3 questions यहाँ पर है, 5 questions इधर है, and 2 questions ये हैं। एंड आई होप स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी चैप्टर को बहुत अच्छे से सुना है और आपने अच्छे से रीड किया है, तो आई एम डेड श्योर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होगा। एंड आई वॉन्ट यू प्लीज़ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, please do ask me. You can call, make a call, you can ask me, but I want to work from you. Thank you very much students. और students please, जो poetry है My Mother at 66 and Elementary Classroom, वो कल तक आप मुझे मेरे पास Google Classroom में भेज दीजिएगा। Thank you very much students। और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेने के लिए sorry for students,
लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।